Bismillahirrahmanirrahim. My name is Mohammad Mahmood Amir and I will be teaching you chemistry of 10th class. As you know that we were discussing chapter number 9, that is basically about the chemical equilibrium, in which we have discussed different ways or different methods in order to identify equilibrium, to study its properties, to study its importance. We discussed the law of mass action, and from the previous lecture we have started the exercise of this particular chapter. So today the exercise of this chapter will be completed inshallah, and hopefully in the next lecture we will solve the activities given in the think tank, and then this chapter will be finished. So in order to begin our today's lecture, first of all I would like to talk about the previous lecture, in which I told you about the I gave you the answers of short question answers, which are basically all the questions that have been discussed thoroughly in the chapter when we were discussing the theory. And we solved two questions also which also have been solved during the lecture studies, but we still did it, which were basically the reaction of ozone into oxygen. We wrote the chemical equilibrium expression, we calculated the units, and we differentiated between the forward and reverse reaction. And in the second lecture we also did the same thing, that was the formation of methane gas, and for that particular reaction we also mentioned forward and reverse reaction. We wrote the Kc expression and we calculated the units. So in today's lecture we will continue from the question number 5. In question number 5 he has given us some 3 to 4 short question answers, and in these particular short question answers he is asking about the is asking from us to write the equilibrium constant expression. Okay, वो हमसे डिमांड कर रहा है कि हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन जो है वो लिखना है, किसके लिए, इस पर्टिकुलर इक्वेशन के लिए. ठीक है, तो इक्वेशन आपके पास क्या है जी, H2O रिवर्सिबल रिएक्शन H2 प्लस 1/2 O2, H2 प्लस 1/2 O2. अब ये देखें इसमें बेसिकली हो रहा क्या है, इन दिस पर्टिकुलर रिएक्शन वाटर इज बीइंग डिकम्पोज्ड इनटू हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस. ठीक है, 1 mole of hydrogen is decomposing and giving us 1 mole of hydrogen and half mole of oxygen. So in order to write the Kc expression, we know that Kc is equals to concentration of products divided by concentration of reactants, each raised to the power of कोएफिशिएंट. ठीक है, तो अब देखें हमें पता है कि इस पर्टिकुलर रिएक्शन में प्रोडक्ट्स कौन सी हैं, ये H2 एंड O2. These two are the products of this particular reaction. So when we will write the concentration of products, we will mention the concentration of H2 and we will multiply it with the concentration of O2, as we know that there is no coefficient mentioned before H2, so H2 will have no power, whereas there is half mole mentioned in front of O2, so O2 will have the power of 1/2. ओके, ये हमारे पास वही बेसिक चीजें हैं जो हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि आपने क्या करना है, हाइड्रोजन गैस इसमें एक रिएक्टेंट है वो यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया, और स्क्वायर ब्रैकेट से हमने उसके गिर्द क्या कर दी, कंसंट्रेशन की रिप्रेजेंटेशन शो कर दी. ठीक है, और दूसरा प्रोडक्ट हमारे पास क्या था, O2 लगा के इसके ऊपर हाफ मोल 1/2 मेंशन कर दिया एज इट्स पावर, जो कि क्या है बेसिकली कोएफिशिएंट था. नाउ इट इज अपीयरिंग एज द पावर, और हमें पता है कि रिएक्टेंट सिर्फ और सिर्फ एक है, तो वो रिएक्टेंट मैंने कहाँ मेंशन कर दिया, यहाँ नीचे, एंड दैट H2O इज द रिएक्टेंट. इसकी कंसंट्रेशन मेंशन कर दी, तो हमारे पास Kc एक्सप्रेशन जो है वो इस पर्टिकुलर एग्जांपल के लिए पूरा हो गया. ठीक है, Kc एक्सप्रेशन जो है वो इस पर्टिकुलर एग्जांपल के लिए पूरा हो गया. तो इसमें बस उसने हमसे सिर्फ यही पूछा
इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन मींस केसी एक्सप्रेशन। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन लिख दिया, हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया। नाउ वी विल मूव ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन। Second question is demanding from us to write the equilibrium constant expression for CO, which is reacting with 2 moles of hydrogen, and with reversible reaction it is producing CH3OH, which is basically alcohol, particularly methyl alcohol. ठीक है। अच्छा, okay. I was telling you carbon monoxide is reacting with 2 moles of hydrogen, and in reversible reaction they are producing 1 mole of methyl alcohol CH3OH. ठीक है। So now if we clearly observe this reaction, there is only one product and there are two reactants. There is only one product and there are two reactants. So in order to write the equilibrium constant expression, ठीक है, we will mention the concentration of methyl alcohol in the numerator. CH3OH क्या होगा, आप में रेशियो के सिंबल के ऊपर आएगा, डिवीजन के सिंबल के ऊपर आएगा, और उसके साथ स्क्वायर ब्रैकेट जो है, दी स्क्वायर ब्रैकेट्स आर रिप्रेजेंटिंग द कंसंट्रेशन इन मोल पर डेसीमीटर क्यूब। ओके, मतलब वो क्या कर रही हैं, वो इसकी कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रही हैं। अब देखें CH3OH से पहले यहाँ पर कोई 2, 3, 4 कुछ भी नहीं लिखा हुआ, ठीक है, कोई कोएफिशिएंट मेंशन नहीं है। सो in this particular reaction CH3OH will have no power, or will have no exponent. Whereas when we will write the reactants which should be placed in the denominator, we observe that the first reactant is CO. We will mention its concentration in the denominator at one side and we will multiply it with the concentration of hydrogen. Okay, H2। ये देखें, पहली स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाई, उनके अंदर मैंने क्या लिखा, CO। दूसरी स्क्वायर ब्रैकेट लगाई, उसके अंदर मैंने क्या लिखा, H2। अब देखें CO के पीछे कोई कोएफिशिएंट नहीं है, देयर इज नो कोएफिशिएंट प्लेस्ड बिफोर CO, so CO will have no power, okay, or will have no exponent, whereas H2 have 2 as a coefficient, so this 2 will appear as the exponent in the denominator above hydrogen. So H2 is the exponent of the hydrogen, which is basically representing the number of moles of hydrogen which are being utilized in this particular reaction. So this is the final form of your equilibrium constant expression for this reaction. Okay, so now in the third example, COCl2 in the reversible reaction is producing carbon monoxide and Cl2। ठीक है, COCl2 आपके पास गैस है जो कि डिकम्पोज हो रही है किस में, कार्बन मोनोऑक्साइड में और क्लोरीन में। किस में डिकम्पोज हो रही है, कार्बन मोनोऑक्साइड में और क्लोरीन में। बेटा आप रिकनेक्ट होके देख लें, लेक्चर तो शेयर हो रहा है, अगर क्लियर नहीं है तो फिर आप थोड़ा सा वेट कर लें, यूट्यूब पे अपलोड होगा तो एक दफा दोबारा सुन लीजिएगा। Okay, COCl2 is decomposing in the reversible reaction and is producing carbon monoxide and chlorine. So we are to write, we are required to write K6. अच्छा, ओके, देखें जी, हमारे पास इस पर्टिकुलर केस में रिएक्टेंट क्या है, COCl2। रिवर्सिबल रिएक्शन हो रहा है, प्रोड्यूस क्या हो रहा है हमारे पास, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड क्लोरीन गैस। सो Kc expression for this reaction will be written as Kc is equals to concentration of products divided by concentration of reactants। और देखें इस केस में हमारे पास दो प्रोडक्ट्स बनी हैं, जबकि रिएक्टेंट कितने हैं, सिर्फ और सिर्फ एक। सो कार्बन मोनोऑक्साइड means concentration of carbon monoxide and concentration of chlorine
will be multiplied and will be written in the numerator. ठीक है, CO लिखेंगे, CO के गिर्द स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट लगा के दूसरा क्लोरीन मेंशन करेंगे, Cl मेंशन करेंगे, उसके गिर्द भी क्या करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट प्लेस कर देंगे। अब देखें CO के साथ कोई कोएफिशिएंट मेंशन नहीं है, देयर इज नो कोएफिशिएंट प्लेस्ड बिफोर कार्बन मोनोऑक्साइड एंड देयर इज नो कोएफिशिएंट प्लेस्ड बिफोर क्लोरीन। ओके, दोनों के से पहले कोई कोएफिशिएंट आपके पास मेंशन नहीं है। जब दोनों से पहले कोई कोएफिशिएंट नहीं है तो इन द केसी एक्सप्रेशन दे विल हैव नो पावर्स। ओके, दे विल हैव नो एक्सपोनेंट, इनकी कोई पावर नहीं होगी। ठीक है, तो अब देखें COCl2 जो कि रिएक्टेंट है वो यहाँ नीचे प्लेस कर दिया, COCl2 अकेला रिएक्टेंट था तो अकेला ही मेंशन हो गया। अब देखें इससे भी पहले यहाँ पर हमारे पास कोई कोएफिशिएंट मेंशन नहीं है, मींस जब कोई कोएफिशिएंट मेंशन नहीं है तो आप इसके ऊपर भी कोई एक्सपोनेंट या कोई पावर नहीं लेंगे। ठीक है, देयर विल बी नो पावर और नो एक्सपोनेंट फॉर दिस रिएक्टेंट इन द denominator. Okay, this was our third question. So now let's move on to the fourth and final part of this particular reaction. Fourth and final part. In the fourth and final part, he is asking about the reaction of HCl gas with O2. In this particular reaction, 4 moles of HCl gas is reacting with 1 mole of oxygen gas, and in reversible reaction they are producing 2 moles of water and 2 moles of chlorine. They are producing 2 moles of water and 2 moles of chlorine. Okay, हमें पता है KC एक्सप्रेशन के लिए फर्स्ट कंडीशन क्या है, KC is equals to concentration of products divided by concentration of reactants. अब देखें इसमें हमारे पास 2 ही प्रोडक्ट्स हैं और 2 ही रिएक्टेंट्स हैं। ठीक है, 2 ही प्रोडक्ट्स हैं और 2 ही रिएक्टेंट्स हैं। तो अब देखें पहला प्रोडक्ट क्या है, H2O। H2O की कंसंट्रेशन मैंने स्क्वायर ब्रैकेट लगा के मेंशन कर दी। ठीक है, H2O लिखा, H2O के गिर्द स्क्वायर ब्रैकेट लगा दी, और इसके ऊपर ये जो पावर आई है 2, वो कैसे आई है, ये देखें H2O से पहले यहाँ पर क्या मेंशन है, 2। ठीक है, H2O से पहले क्या मेंशन है, 2, मींस H2O का कोएफिशिएंट क्या है, 2। तो जब H2O का कोएफिशिएंट 2 है तो इसका एक्सपोनेंट भी कितना होगा, 2 होगा। ठीक है, और इसी तरह ये आपके पास क्या है जी, Cl2। ठीक है, ये दूसरा प्रोडक्ट था, वो इसके साथ मल्टीप्लाई करके लिख दिया स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। क्यों स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा है, बिकॉज स्क्वायर ब्रैकेट इज यूज्ड टू मेंशन द और टू रिप्रेजेंट द कंसंट्रेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपाउंड। तो Cl2 की कंसंट्रेशन रिप्रेजेंट करनी है तो क्या करेंगे, हम स्क्वायर ब्रैकेट लगा दी, और देखें Cl2 से पहले कोएफिशिएंट में क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, तो ये वाला जो 2 है दैट विल बी अपीयरिंग एज द कोएफिशिएंट ऑफ दिस पर्टिकुलर रिएक्शन। ओके, अब देखें दूसरे रिएक्शन में, दूसरे में क्या कर रहा है जी, 4HCl पहला रिएक्टेंट है, 4HCl। तो HCl ये मेंशन किया, उसके गिर्द स्क्वायर ब्रैकेट लगाई, उसकी कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट किया, और ये जो 4 है दैट विल बी अपीयरिंग इन द एक्सपोनेंट। क्यों, क्योंकि ये कोएफिशिएंट है और कोएफिशिएंट का हमें पता है वो कहां पर चला जाता है, एक्सपोनेंट में चला जाता है। ठीक है, और ये O2 जो है आपके पास वो साथ इसके मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस O2 से पहले कोई आपके पास यूनिट नहीं है, कोई 1 2 3 4 कुछ नहीं है, तो O2 की कोई पावर भी नहीं है। ठीक है, अब देखें H2O से पहले 2 था, H2O के ऊपर 2 पावर आ गई। Cl2 से पहले 2 था तो Cl2 की पावर भी 2 आ गई, और HCl से पहले 4 है तो HCl की पावर 4 आ गई। लेकिन O2 से पहले कुछ भी मेंशन नहीं है, तो O साथ भी कुछ मेंशन नहीं है। ठीक है, अच्छा, ओके जी। इन द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज बेसिकली द क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 में हमने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 6 में सेम काम करना है, केसी एक्सप्रेशन लिखना है, लेकिन केसी एक्सप्रेशन पे रुकना नहीं है, बल्कि क्या करना है, वी हैव टू डिटरमिन द यूनिट्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। हमने क्या करनी है, 7 यूनिट्स कैलकुलेट करके देनी है। तो यूनिट्स कैलकुलेट कैसे करेंगे, यूनिट्स कैलकुलेट करने के लिए हमें पता है कि जहां पर हमने कंपाउंड अपना रिप्रेजेंट किया हुआ होता है उसकी जगह पर हम क्या लिख देते हैं, मोल पर डेसीमीटर क्यूब, और जो पावर होती है वो अपनी जगह मेंटेन रहती है। ठीक है, तो हम लोग अभी क्या करेंगे, सबसे पहले अपना एक्सप्रेशन देखेंगे, अपनी इक्वेशन देखेंगे,
From that equation we will write the equilibrium constant expression, and after representing the equilibrium constant expression we will then determine the units. ठीक है, by replacing the compounds with the unit mole per decimeter cube, and then by simplifying we will finally get our required answer, which will be the unit of this particular reaction. So and the first reaction, that is basically COCl2 is decomposing and is producing carbon monoxide and chlorine. COCl2 is decomposing and is producing carbon monoxide and chlorine. So for Kc expression, Kc will be equal to concentration of products divided by concentration of reactants. Concentration of products divided by concentration of reactants. So Kc will be equal to, ये अभी हमने एक मिनट पहले दोबारा पीछे थर्ड एग्जांपल में भी पढ़ा है, देखें CO एक प्रोडक्ट थी तो CO कहाँ पर प्लेस कर दी गई है, CO is appearing in the numerator and Cl2 is the other product and it is being multiplied with CO and is written in the numerator, and as you can see there is nothing, no coefficient before CO or Cl2. CO या Cl2 से पहले कोई कोएफिशिएंट नहीं है, ठीक है। जब कोई कोएफिशिएंट नहीं है तो इनका एक्सपोनेंट भी कोई भी नहीं होगा, मींस इनकी पावर भी कोई भी नहीं होगी। देन रिएक्टेंट क्या था, COCl2 अकेला रिएक्टेंट है, वो अकेला कहाँ प्लेस कर देंगे, डिनोमिनेटर में COCl2 लिखेंगे और उसके गिर्द क्या आ जाएगा जी, उसके गिर्द आ जाएगी स्क्वायर ब्रैकेट, और COCl2 से पहले कोई कोएफिशिएंट नहीं है तो इसका भी कोई एक्सप्रेशन या कोई एक्सपोनेंट नहीं होगा। ओके, now we know that we have to calculate the unit for this particular Kc expression. Okay, in order to calculate the unit, CO will be replaced with moles per decimeter cube. ठीक है, हमें पता है क्योंकि ये हमने स्क्वायर ब्रैकेट लगाई है ना, स्क्वायर ब्रैकेट किस चीज को रिप्रेजेंट करती है, मोल पर डेसीमीटर क्यूब को। ठीक है, मोल पर डेसीमीटर क्यूब आ जाएगा, Cl2 की जगह क्या आ जाएगा, मोल पर डेसीमीटर क्यूब आ जाएगा, और COCl2 की जगह क्या आ जाएगा, मोल पर डेसीमीटर क्यूब आ जाएगा। ठीक है, सारों की जगह एक एक दफा मैंने क्या लिख दिया, मोल पर डेसीमीटर क्यूब। एज आई हैव प्रीवियसली टोल्ड यू, जितने नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स होंगे और जितने नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स होंगे उन सब के लिए आपने अलग अलग से क्या करना है, मोल पर डेसीमीटर क्यूब को रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, अब देखें हमारे पास क्या हो रहा है जी, अब ये देखें कि ये ऊपर एक मोल पर डेसीमीटर क्यूब है, ये कैंसिल हो जाएगा किसके साथ, नीचे वाले इस मोल पर डेसीमीटर क्यूब के साथ। ठीक है, तो अब न्यूमरेटर में आपके पास क्या बच गया है, न्यूमरेटर में आपके पास एक मोल पर डेसीमीटर क्यूब जो है वो बच गया। तो दिस मोल पर डेसीमीटर क्यूब विल बी द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर रिएक्शन। ये देखें, ये जो मोल पर डेसीमीटर क्यूब है ये इस पर्टिकुलर रिएक्शन की क्या कहलाएगी, यूनिट कहलाएगी। ठीक है, दिस मोल पर डेसीमीटर क्यूब इज द यूनिट ऑफ दिस पर्टिकुलर रिएक्शन। ओके जी, आई होप सो ये क्लियर होगा। बहुत दफा हम ये काम कर चुके हैं इस पूरे चैप्टर में, हमने थ्योरी से ज्यादा ये न्यूमेरिकल्स और ऐसी एग्जांपल्स ही देखी हैं, तो इंशाल्लाह अब इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल पे मूव करते हैं जी। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है जी हमारे पास, H2 plus I2 in the reversible reaction is producing 2 moles of HI. Hydrogen is reacting with iodine and in the reversible reaction it is producing 2 moles of hydrogen iodide. ठीक है जी, क्या चीज बन रही है, हाइड्रोजन रिएक्ट कर रहा है आयोडीन के साथ और रिवर्सिबल रिएक्शन में 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड प्रोड्यूस हो रहे हैं। केसी एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे, Kc इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। अच्छा जी, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, तो Kc एक्सप्रेशन लिखने के लिए क्या करेंगे, प्रोडक्ट हमारे पास क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक है, HI। ठीक है, प्रोडक्ट हमारे पास क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक HI हाइड्रोजन आयोडाइड। तो वो मैंने उसकी कंसंट्रेशन मेंशन की, वो कंसंट्रेशन मेंशन करने के बाद देखें HI से पहले क्या लिखा हुआ है, 2। HI से पहले क्या लिखा हुआ है, 2। तो ये जो 2 है ये क्या बन के आ गया हमारे पास, एज एन एक्सपोनेंट और एज अ पावर। ठीक है, अब देखें एक रिएक्टेंट हमारे पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मेंशन किया, और दूसरा रिएक्टेंट हमारे पास क्या है, आयोडीन, उसको सेपरेट स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मेंशन किया। और देखें अब इससे पहले हमारे पास कोई यूनिट नहीं है, कोई एक कोएफिशिएंट नहीं है,
और इस हाइड्रोजन से पहले भी कोई कोएफिशिएंट नहीं है। तो जब इन दोनों से पहले कोई कोएफिशिएंट नहीं है तो देखें इन दोनों की पावर भी कोई भी नहीं है, ठीक है। अब इनकी कोई पावर नहीं है तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, केसी एक्सप्रेशन कंप्लीट हो गया। सो इन ऑर्डर टू डिराइव द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, in order to derive the unit for this equilibrium constant expression, we will replace the compound with its concentration, that is basically mole per decimeter cube. So HI की जगह मेरे पास क्या आ जाएगा, मोल पर डेसीमीटर क्यूब, और इसकी जगह मेरे पास स्क्वायर की जगह अपनी कायम रहेगी, स्क्वायर जो है वो एज इट इज रहेगा, वी कैन नॉट रिप्लेस इट विद एनी अदर थिंग। H2 जो है आपके पास देखें उसकी जगह पर एक दफा मोल पर डेसीमीटर क्यूब आ गया, और I2 की जगह पर अलग से एक दफा मोल पर डेसीमीटर क्यूब आ गया, ठीक है। तो अब देखें आपके पास यहाँ पर मोल पर डेसीमीटर क्यूब का स्क्वायर है, मींस मोल पर डेसीमीटर क्यूब 2 टाइम्स है, तो 1 टाइम मोल पर डेसीमीटर क्यूब इसके साथ कैंसिल हो गया, ठीक है, एंड 1 टाइम मोल पर डेसीमीटर क्यूब जो है वो इसके साथ कैंसिल हो गया, मींस एवरीथिंग हैज बीन कैंसल्ड आउट। So Kc will have no units for this particular reaction. इस पर्टिकुलर रिएक्शन में Kc एक्सप्रेशन की कोई यूनिट भी नहीं है, क्यों, क्योंकि हमारे पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर एक्जैक्टली इक्वल था, और जब भी हम रेशो निकाल रहे हो और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इक्वलाइज हो जाए तो वो आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं, और हमारे पास आंसर फिर 1 बचता है, यानी कोई यूनिट इस में Kc एक्सप्रेशन की कोई यूनिट भी नहीं है, ठीक है। अब ये देखें थर्ड पार्ट में क्या कर रहा है जी, 2H2 प्लस O2 रिवर्सिबल रिएक्शन, दे आर प्रोड्यूसिंग 2H2O, मतलब कि हाइड्रोजन रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ, एंड इन द रिवर्सिबल रिएक्शन दे आर प्रोड्यूसिंग 2 moles ऑफ वाटर, ठीक है। 2 moles ऑफ हाइड्रोजन is reacting with 1 mole of oxygen, or reacting with 1 mole of oxygen, and in the reversible reaction they are producing 2 moles of water. So first of all we will write the equilibrium constant expression, ठीक है। हमें पता है equilibrium constant expression किस तरह लिखा जाता है, Kc equals to product our reactants, Kc is equal to products our reactants। तो जी क्या करेंगे हम, first of all we will write the products in the numerator, the product was H2O, so H2O will be placed in the numerator, 2 is the coefficient, so it will appear as the exponent in this particular reaction, ठीक है। H2O आपके पास क्या था, प्रोडक्ट था, उसकी कंसंट्रेशन न्यूमरेटर में मेंशन की, और 2 जो क्या है इससे पहले नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कोएफिशिएंट है, तो उसके ऊपर क्या लगा दिया है, स्क्वायर लगा दिया, ठीक है। अब देखें एक पहला रिएक्टेंट हमारे पास है हाइड्रोजन H2, ओके, कंसंट्रेशन ऑफ H2 इज मेंशन्ड इन द डिनोमिनेटर, और H2 से पहले जो 2 है, यानी जो उसकी मोल की रिप्रेजेंटेशन है, जो उसका कोएफिशिएंट है, इट इज अपीयरिंग इन द एक्सपोनेंट और इन द पावर। और इसी तरह ये देखें दूसरा क्या है, O2 है, तो O2 जो है आपके पास वो क्या है जी, दूसरा रिएक्टेंट है, सो इट इज O2 जो है आपके पास वो दूसरा रिएक्टेंट है, और इसकी जो यूनिट है वो क्या है, 1 या कोई भी नहीं, इसकी जो पावर है वो क्या है, कुछ भी नहीं, क्यों, क्योंकि O2 से पहले हमारे पास यहाँ पर कोई कोएफिशिएंट मेंशन भी नहीं है, ठीक है। अब हमने इसकी यूनिट कैलकुलेट करनी है, तो H2O को कौन रिप्लेस कर लेगा, मोल पर डेसीमीटर क्यूब, ठीक है, और स्क्वायर अपनी जगह पर कायम। H2 को कौन रिप्लेस कर लेगा, मोल पर डेसीमीटर क्यूब और स्क्वायर अपनी जगह पर कायम, और O2 जो है वो क्या करेगा, रिप्लेस हो जाएगा किससे, मोल पर डेसीमीटर क्यूब से। ऊपर भी कोई यूनिट नहीं है तो नीचे भी, ऊपर कोई पावर नहीं थी तो नीचे वाले एक्सप्रेशन में भी कोई पावर नहीं आएगी, ठीक है। नाउ अब ये देखें आप कि हमारे पास ऊपर मोल पर डेसीमीटर क्यूब का स्क्वायर है, और नीचे ये भी क्या है, मोल पर डेसीमीटर क्यूब का स्क्वायर है, तो ये एज ए होल पूरे का पूरा कैंसल किसके साथ, इस वाले मोल पर डेसीमीटर क्यूब के साथ, ठीक है। तो ये आपके पास क्या हो गया, कैंसल्ड आउट हो गया। अब क्या बच जाएगा आपके पास, देखें न्यूमरेटर, इन द न्यूमरेटर एवरीथिंग हैज बीन कैंसल्ड आउट, सो देयर विल बी ओनली 1 लेफ्ट, ओके, एंड इन द डिनोमिनेटर मोल पर डेसीमीटर क्यूब is left behind as it has not been cancelled with any expression, so it is placed over here। so अब Kc equals to
हमें पता है कि हमने इस फॉर्म में, रेशो की फॉर्म में यूनिट नहीं लिखनी होती, वी राइट द यूनिट और वी एक्सप्रेस द यूनिट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म और नॉर्मल फॉर्म। तो ये जब नीचे से मोल पर डेसीमीटर क्यूब ऊपर जाएगा तो मोल की पावर इनवर्स हो जाएगी और डेसीमीटर क्यूब की पावर प्लस हो जाएगी, ठीक है। मोल विल बी कन्वर्टेड इनटू -1 as it was previously +1 and decimeter cube will be converted to +3 as it was previously -3, ठीक है। +1 -1 में कन्वर्ट हो गया और -3 +3 में कन्वर्ट हो गया। So in the next example, that is basically example number 4, N2 plus 2O2 reversible reaction 2NO2, ठीक है। 1 mole of nitrogen is reacting with 2 moles of oxygen and in the reversible reaction it is producing 2 moles of nitrogen oxide, ठीक है, या 2 moles of nitrogen dioxide, ठीक है। क्या रिएक्शन हो रहा है जी हमारे पास, N2 is reacting with O2 and in the reversible reaction it is producing 2 moles of NO2, कि N2 रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ और रिवर्सिबल रिएक्शन में हमें क्या बनाकर दे रहा है, 2NO2। So in order to write the Kc expression, we know that products are placed in the numerator, so the product is NO2, it is being placed in the numerator, 2 is the coefficient, so it will appear as exponent in the final form or in the numerator, and N2 is the reactant, so it will be appearing in the denominator. Oxygen is the second reactant, it will be appearing in the denominator and will be multiplied with the nitrogen, and 2 is the coefficient of oxygen, so 2 will appear as the power of oxygen, ठीक है। मैंने आपको बता दिया कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है आपके पास वो प्रोडक्ट में आएगा, स्क्वायर ब्रैकेट लगा के उसकी कंसंट्रेशन रिप्रेजेंट करेंगे और उससे पहले जो 2 है उसको यहाँ पर ऊपर लिखेंगे, क्यों, क्योंकि हमें पता है कोएफिशिएंट को एज ए पावर रिप्रेजेंट करना है। N2 जो है वो मेंशन किया, ठीक है, उसके पहले कोई कोएफिशिएंट नहीं है तो उसकी पावर भी कोई नहीं है। ऑक्सीजन दूसरा रिएक्टेंट है, तो हमें पता है अगर रिएक्टेंट एक से ज्यादा होंगे तो आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। मल्टीप्लाई करने के लिए मैंने बीच में कोई सिंबल नहीं लगाया, दैट विल बी द रिप्रेजेंटेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन, और O2 से पहले आपके पास 2 लिखा हुआ है, तो दिस 2 is basically the coefficient of, is basically the exponent of oxygen. So in order to calculate the unit, I will replace NO2 with mole per decimeter cube, ठीक है, and square will appear on its place. N2 will be replaced with mole per decimeter cube and no units will be placed as it has no units in the Kc expression, and O2 will be replaced with mole per decimeter cube and it will have the second degree or square on it as in the original equation oxygen has square. So I have told you कि हमने सिर्फ और सिर्फ क्या किया है कि NO2 की जगह मोल पर डेसीमीटर क्यूब लगा दिया है, N2 की जगह मोल पर डेसीमीटर क्यूब लगा दिया है और O2 की जगह मोल पर डेसीमीटर क्यूब लगा दिया। Now in the ratio we know that the similar expressions are cancelled out, तो मोल पर डेसीमीटर क्यूब का स्क्वायर मोल पर डेसीमीटर क्यूब के स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, and 1 divided by mole per decimeter cube will be left behind as everything in the numerator has been cancelled out. न्यूमरेटर में कुछ भी नहीं बचा तो न्यूमरेटर में क्या बचेगा, 1 बचेगा, ठीक है। तो अभी हमें पता है कि हमने इस फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं करना होता, हमने किस फॉर्म में एक्सप्रेस करना होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म में, रेशो में नहीं। तो रेशो से जब इसको हटाएंगे तो मोल की पावर नीचे, जब वो न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में है तो पावर कितनी है, +1, तो जब वो नीचे से ऊपर शिफ्ट होके कहाँ पर आएगा, न्यूमरेटर में, तो उसकी पावर कितनी रह जाएगी, उसकी पावर कितनी रह जाएगी, -1, ठीक है। +1 विल बी कन्वर्टेड इनटू -1, साइंस चेंज हो जाते हैं, ठीक है। और डेसीमीटर क्यूब जो था जिसकी यूनिट ओरिजिनली क्या थी, dm -3, तो -3 विल बी कन्वर्टेड इनटू +3, ठीक है। तो ये आपके पास इसी क्वेश्चन के साथ आपका जो 6th क्वेश्चन था वो भी कंप्लीट हो गया इस एग्जांपल के साथ। सो नाउ वी विल मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 में देखें, वो सिंपल थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, स्टेट द वेज दैट इक्विलिब्रियम कैन बी रिकॉग्नाइज्ड। ये आप अगर अपने बुक पे 2 to 3 पेजेस पीछे जाएं, आई थिंक 7th के 8th नंबर पेज है, उस पे मेंशन है वेज टू रिकॉग्नाइज इक्विलिब्रियम, ठीक है, इन विच आई हैव टोल्ड यू वी कैन आइडेंटिफाई द इक्विलिब्रियम बाय बोथ फिजिकल एंड केमिकल वेज, कि हम इसको फिजिकल मेथड्स से भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं और केमिकल मेथड्स से भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। और केमिकल मेथड्स में हमारे पास जो था वो क्या थी, स्पेक्ट्रोस्कोपी आ रही थी और स्पेक्ट्रोस्कोपी के साथ हमारे पास टाइट्रेशन का जिक्र था,
तो विच आई हैव टोल्ड यू कि ये हायर लेवल के कॉन्सेप्ट हैं और आपको जब नेसेसरी होंगे फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में तो आपको ये डिटेल में क्या कर दिए जाएंगे, एक्सप्लेन कर दिए जाएंगे। अभी इनकी एक्सप्लेनेशन आपके लिए जानना जरूरी नहीं है, अभी आपको सिर्फ नाम पता होना चाहिए कि what are the chemical ways to recognize the chemical equilibrium by the chemical equilibrium can be recognized by using titration or spectroscopy. And in question number 8 he is asking describe the macroscopic characteristics of equilibrium reaction. So it is the last page of your book, ठीक है। लीच एडलर प्रिंसिपल के बिल्कुल नीचे, लीच एडलर प्रिंसिपल के बिल्कुल नीचे जहां पर आपके पास वो कॉन्सेप्ट इन ब्रीफ लिखा हुआ है ना, कॉन्सेप्ट इन ब्रीफ में उसने सबसे पहले फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन के दरमियान डिफरेंस कोट किया हुआ है, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन, उसके ऊपर आपके पास क्लियरली मेंशन होगा मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स, तो उसमें आपने सिर्फ और सिर्फ वो डिफरेंस मेंशन करना है फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन का, ठीक है। लास्ट पेज पे ब्लू ब्लॉक के नीचे मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स के नाम से फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन के दरमियान डिफरेंस मेंशन है, दैट डिफरेंस इज नोन एज मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इक्विलिब्रियम रिएक्शन। सो नाउ इफ यू हैव एनी क्वेश्चन feel free to ask, I will answer them. Okay students, any questions? explain कर देगा। जी बेटा, if you have need notebooks you can write down these questions on the notebook, and if you do not have need notebooks you must practice them on the rough copy so that you may not forget until the schools reopen. Any other questions related to the topic? Any other questions related to the topic? Okay, then if nobody has any questions related to the topic, then I will end the class over here, and hopefully in the next lecture we will start the chapter number 10 or chapter number 2 of this book. Ji, you can ask the question. What question do you have? But be quick, we have a very little time left, or else I will not be able to answer them. But a large value of Kc will represent that this reaction will proceed more in the forward reaction, and if you will keep on extracting the product, then it will go to completion. Otherwise, once the equilibrium has been established, it will revert back to the or it will start decomposing into the reactants. Any other questions?
Any other questions? ठीक है, आई होप सो आपको समझ आ गया होगा कि इफ अ रिएक्शन हैज लार्ज वैल्यू ऑफ Kc, ठीक है, अगर किसी एक्सप्रेशन के लिए Kc की वैल्यू बहुत ज्यादा आ जाए, the reaction will proceed toward the forward direction, means reactant will keep on reacting and they will be producing more and more product. But if the value of Kc expression is very large, ठीक है, and it is very big, ठीक है, means it is 10, 11, 12 or something, means much greater than 1, so that reaction will go to completion and 100% of the reactant will be converted into the product. Any other questions? So okay then students, inshallah we will meet in the next lecture. Until then, Allah Hafiz.